جائیں سپرنٹینڈنٹ جیل کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل سے کوئی خط تحریر نہ کرنے کا انکشاف۔ سپرنٹینڈنٹ جیل عبدالغفور انجم نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے کسی شخصیت کو کوئی خط تحریر نہیں کیا۔ جیل میں لکھے جانے والے ہر خط کی جانچ سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جیل سے کسی کو انتشار، دہشت یا نقصان پہنچانے والا خط بھیجنا ممکن نہیں۔ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کا الزام جھوٹا ہے۔ کسی بھی قیدی کو قید تنہائی میں رکھنے کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے۔ جیل میں لکھے جانے والے ہر خط کی جانچ سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں لکھا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے کوئی خط تحریر نہیں کیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا انکشاف، بانی پی ٹی آئی نے جیل سے کسی شخصیت کو کوئی خط تحریر نہیں کیا ہے۔ جیل میں لکھے جانے والے ہر خط کی جانچ سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل سے سوشل میڈیا استعمال کرنا بھی ممکن نہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل کا ایسا کہنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے کوئی خط تحریر نہیں کیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا ایسا انکشاف سامنے آیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے انوار عباسی سے۔ جنوار بتائیے گا سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف کو لکھے گئے خط پر کافی بحث چل رہی تھی اور آج جیل سپرنٹینڈنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے کوئی خط تحریر ہی نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں کسی شخصیت کو کوئی خط تحریر نہیں کیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل عبدالغفور انجم نے کہا ہے کہ جیل میں لکھے جانے والے ہر خط کی جانچ سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیل سے کسی کو انتشار، دہشت یا نقصان پہنچانے والا خط نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کا الزام بھی جھوٹا ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی قیدی کو قید تنہائی میں رکھنے کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل میں قواعد سے زیادہ سہولیات دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے جیل میں فراہم کی جانے والی سہولیات کو اطمینان بخش قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل سے سوشل میڈیا استعمال کرنا ممکن ہی نہیں۔ زیر حراست افراد کے خطوط جیل سپرنٹینڈنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں بھیجے جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ہفتے میں 3 ملاقاتیں کی خصوصی سہولت دی جا رہی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا۔ جی صحیح، بہت شکریہ انوار عباسی۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل داخلے سے روک دیا گیا۔ جیل کے داخلی گیٹ پر فیصل چودھری اور جیل عملے کے مابین تلخلامی ہوئی۔ 2 گھنٹے تک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھا کر فیصل چودھری کو واپس جانے کا کہہ دیا گیا۔ فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل چوکی میں جیل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ میں بانی پی ٹی آئی کا وکیل ہوں، ان کے تمام مقدمات میں پیش ہوتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کے تمام کیسز میں میرا وکالت نامہ جمع ہے۔ جیل عملے نے آج داخلی دروازے پر روک دیا اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی GHQ کیس کی سماعت مقرر کی تھی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لفٹ گرنے کا واقعہ۔ ہائی کورٹ بلڈنگ کے دوسرے فلور سے لفٹ گراؤنڈ فلور پر جا گری۔ لفٹ میں موجود وکلاء سمیت 7 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ لفٹ کو چابی کے ذریعے کھول کر لوگوں کو نکالا گیا۔ ہائی کورٹ میں لفٹ خرابی کا یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے لطیف کھوسہ سمیت 11 لوگ لفٹ میں پھنس گئے تھے۔ آپ کو اس متعلق آگاہ کریں، لفٹ گرنے کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے قبل بھی لطیف کھوسہ سمیت 11 افراد لفٹ میں پھنس گئے تھے۔ ابراہیم عباسی مزید بتائیں گے۔ ابراہیم بتائیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر لفٹ گر گئی ہے؟ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لفٹ گرنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ہائی کورٹ بلڈنگ کے دوسرے فلور سے لفٹ گر کر جو ہے وہ گراؤنڈ فلور کے اوپر جا گری، جس میں لفٹ میں موجود وکلاء میں 7 افراد کو بحفاظت جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے۔ اور ہائی کورٹ میں لفٹ کا خرابی کا یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے لطیف کھوسہ سمیت 11 لوگ جو ہے وہ لفٹ میں پھنس گئے تھے، جس کے بعد چابی کے ذریعے اس کے مین گیٹ کو، دروازے کو کھول کر توڑ کر جو ہے وہ باہر نکالا گیا تھا۔ آج بھی اسی طریقے کا معاملہ ہوا ہے۔ سیکنڈ فلور سے لفٹ ٹوٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور جو کہ وہ نیچے گراؤنڈ فلور کے اوپر لگی ہے، جس میں تقریباً 7 جو لوگ اس میں شامل تھے، اس میں وکلاء بھی تھے، جس کو باہر چابی لگا کر جو ہے وہ چابی کے ذریعے لفٹ کو کھول کر تمام افراد کو حفاظت جو ہے وہ باہر نکال لیا گیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ ابراہیم عباسی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رمضان شوگر ملز کیس سے بری کر دیا گیا۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی۔ 18 فروری 2019 کو نیب نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کیس میں ریفرنس دائر کیا تھا۔
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले को 21 करोड़ रुपए से कौमी खजाने के जरिए तामीर करवाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। रमज़ान शुगर मिल्स केस का फैसला 3 फरवरी को महफूज किया गया था, जबकि 28 जनवरी को मुकदमा के मुद्दई जुल्फ़िकार अली ने रेफरेंस से इजहार ला ताल्लुकी किया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत का कहना था कि अगर आप इजाज़त देते हैं तो तैयारी भी करनी है। इनकी दरख्वास्त पर आज ही फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है। डिप्टी कमिश्नर दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसला जारी करें। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने जलसे के लिए दरख्वास्त दायर की है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसला जारी करे। अदालत का ऐसा कहना है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान में जलसे की दरख्वास्त निपटा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। पीटीआई का 8 फरवरी को इस्लामाबाद में एहतजाज न करने का ऐलान। पीटीआई ने एहतजाज को हतमी शक्ल दे दी। 8 फरवरी को पीटीआई इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करेगी। पीटीआई ज़रा के मुताबिक इस्लामाबाद के क़यादत और कारकुनान सवाबी जलसे में शिरकत करेंगे। तमाम काफिलों के पहुंचने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को बाहर के लोगों के लिए बंद किया जाएगा। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद की क़यादत और कारकुनान सवाबी जलसे में शिरकत करेंगे। पीटीआई ज़रा ऐसा बताते हैं। तमाम काफिलों के पहुंचने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया जाएगा। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का एहतजाज हतमी शक्ल दे दी गई है और सवाबी में जलसा होगा। इस सिलसिला में इस्लामाबाद में कोई एहतजाज नहीं होगा, बल्कि तमाम कारकुनान सवाबी पहुंचेंगे। पंजाब के वर्कर्स और क़यादत लाहौर जलसा में शिरकत करेगी। सिंध की क़यादत कराची समेत अपने हलकों में एहतजाज करेगी। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदे BN न्यूज़ जाहिदा राव से। जाहिदा, एक मरकजी जलसा सवाबी में रखा गया है, दीगर सूबों के हवाले से क्या हिकमत अमली सामने आई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को एहतजाज का फैसला है। जो बड़ा जलसा है वो सवाबी में होगा। बाकी जो शहर हैं जैसे जनूबी पंजाब है वहाँ पर जो हर हल्के में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि इस्लामाबाद की तरफ भी कोई एहतजाज होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिलहाल इस्लामाबाद में एहतजाज करने का कोई प्लान नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद से जो काफिले, इस्लामाबाद की जो लीडरशिप है यहाँ से लोगों को लेकर सवाबी में जाएगी और सवाबी में जलसा कामयाब है। लेकिन जो सिंध की क़यादत है वो सवाबी में नहीं जाएगी, जनूबी पंजाब की क़यादत सवाबी में नहीं जाएगी। वो अपने अपने हल्के में जहाँ जहाँ से उनको लगता है कि रिजल्टों से उनको यकीन नहीं था वैसे आए थे, तो वहाँ पर जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराई जाएगी और लोगों को जो है निकालेगी 8 फरवरी को। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। बीजिंग में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन की रियासती काउंसिल के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात। सदर ममलिकत ने दोनों मुल्कों के माबैन पायदार और गहरी ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक को कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर रोशनी डाली है। एलामी के मुताबिक सदर ममलिकत ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। सदर ममलिकत ने इलाके रवाबत और इक़्तिसादी तरक्की की फ़रोग में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी में अहम किरदार पर रोशनी डाली और पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। बाद अज़ां पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत करने की तकरीब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयांग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। मुस्तफा महमूद की सदारत में कौमी असम्बली की कायमी कमेटी पेट्रोलियम का इजलास। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुझ समेत मेरी मिनिस्ट्री में सब आइन के ताबे हैं। इंतजामी उमूर में अदालती मुदाखलत की वजह से कानून बदलने पड़ते हैं। सैयद नवीर कमर ने कहा सिंध को इसके हिस्से की गैस फराहम नहीं की जा रही, अगर इसी तरह से करना है तो आइन को तब्दील कर दे। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा सिंध और पंजाब को गैस की फराहमी आइन के तहत ही हो रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा चारों सूबों की चार अपनी अपनी कंपनियां बनाएं और चलाएं। किसी भी सूबे को कुदरत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता एक सूबे में दर्जा हरारत 0, दूसरों को उनका हिस्सा दिया जाए। इस मुतालिक आपको आगाह करें, चारों सूबों की चार अपनी अपनी कंपनियां बनाएं और चलाएं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम का ऐसा कहना है चारों सूबों की चार अपनी कंपनीज होनी चाहिए। कौमी असम्बली के कामा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का चेयरमैन सैयद हुसैन तारिक की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी की कीमतों में इजाफे और गंदम की पैदावार का मामला ज़ेर बहस आया। अरकान कमेटी के चीनी की कीमतों में इजाफे पर इज़हार तशवीश। अरकान कमेटी ने मुतालबा किया कि हुकूमत को गंदम की इमदाद कीमत का ऐलान करना होगा और किसानों से गंदम भी खरीदना होगी। इटली की हुकूमत की जानिब से ऑयल सेक्टर और हार्टिकल सेक्टर का मनसूबा, इसमें से 80% कर्जा और 20% इमदाद होगी।
वजारत के अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग का 12.5 करोड़ रुपए का मंसूबा। हजरात के मंसूबों पर एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया, हमारे पास 26 मंसूबे हैं जिसमें से 18 मंसूबों पर काम होगा। 8 मंसूबे खत्म हो जाएंगे। 36 नई तजावीज़ हैं। 201 अरब रुपए की फंड्स में से 187 अरब रुपए मिले ही नहीं, सिर्फ 14.5 अरब रुपए मिले हैं। ये भी कहा कि टिश्यूज़ कल्चर 2020 में शुरू होने वाला मंसूबा 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। गन्ने की पैदावार औसतन 700 मन फी एकड़ होने का इंकशाफ है। अरकान कमेटी का एहतजाज 1500 मन फी एकड़ पैदावार हो रही है, इसके खिलाफ हुकूमत को एक्शन लेना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी हैं। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वज़ारतों को ख़त्म किया जा रहा है। इस्लामाबाद में ब्रेथ पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ग्रीन तवानाई के शोबे में भी मुआवनत बढ़ा रहे हैं। माहौलियाती फ़ंड के क़याम के बाद मुतासर ममालिक की मदद ज़रूरी है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मज़ीद इक़दाम पर तवज्जो देना होगी। तामीराती शोबा के लिए हुकूमत रिलीफ की तजावीज़ तैयार। FBR को अरसाल। तामीराती शोबा की बहाली के लिए टास्क फोर्स ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तामीराती शोबे की बहाली से रोज़गार में इजाफा चाहते हैं। नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ मालियत की जायदाद खरीदने की इजाज़त होगी। प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने में 236C में टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी के लेन देन में मजमूई तौर पर 11 से 14% टैक्सेस आयद हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि 236 तामीराती शोबे के लिए हुकूमत रिलीफ की तजावीज़ तैयार की गई हैं। FBR को ये अरसाल कर दिया गया है। तामीराती शोबा की बहाली के लिए टास्क फोर्स ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। कोहाट में कमिश्नर हाउस में ज़िला कुरम में अमनोमा के हवाले से दोनों फ्रीकैन का जिरगा मेंबर इरशाद बंगश के मुताबिक जिरगे में 14 नुकाती अमन वाहिदे पर अमल दरामद और असलहा हवालगी के हवाले से बातचीत की जा रही है। जिरगा में कमिश्नर कोहाट रीजन मुतसम बिल्ला शाह, आर्मी और ज़िले अफसरान और ज़िला कुरम के जिरगा मेंबरान शिरकत कर रहे हैं। जिरगा में बंकर्स की मसमारी पर बातचीत की जा रही है। ज़िला कुरम में दहशत गर्दों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश के हवाले से भी लाहेमल तय किया जाएगा।